لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ AQI کی مجموعی شرح 230 پر جا پہنچی ہے، جبکہ ملکی اور عالمی سطح پر فضائی آلودگی میں شہر لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ گرد و غبار درجہ حرارت میں کمی کے باوجود شہر کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ AIQ کی مجموعی شرح 230 ریکارڈ کی گئی۔ شہری موسم سے پریشان ہیں۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر۔ دنیا بھر میں بھی فضائی آلودگی میں شہر سر فہرست ہے۔ CERP آفس 252، شاہراہ قائد اعظم 220، پاکستان انجینئرنگ سروس 243، US قونصلیٹ میں 241 AQ ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 8 میں 207، ٹھوکر نیاز بیگ 208، جوہر ٹاؤن 205، سید مراتب علی روڈ 199 AQ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں، چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا اجلاس اور ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں سے محسن نقوی کو آگاہ کیا۔ نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی پاکستان کرکٹ کو فتوحات کے ٹریک پر واپس لانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی پر سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا 2 گھنٹے طویل اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے پہلے مینٹورز سے علیحدہ میٹنگ کی اور پھر سلیکشن کمیٹی ارکان اور مینٹورز کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی۔ طویل اجلاس میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں بارے چیئرمین PCB کو آگاہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور مینٹورز کا نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے کا عمل رواں سیریز کے اختتام تک مکمل کرنے پر اتفاق ہوا۔ کھلاڑیوں کے فٹنس کے عمل کو بھی رواں سیریز کے ختم ہونے تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے پچز کا معیار بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سلیکشن کمیٹی کے اراکین اور مینٹورز نے تجاویز دیں۔ سلیکشن کمیٹی کے ارکان عاقب جاوید، اظہر علی، علیم ڈار، حسن چیمہ، ایڈوائزر بلال افضل، ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان، مینٹور شعیب ملک، مصباح الحق، وقار یونس، ثقلین مشتاق اجلاس میں شریک ہوئے۔ مینٹور سرفراز احمد اور سلیکشن کمیٹی کے رکن اسد شفیق ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور سرفراز احمد کو آرام دینے کا فیصلہ، جبکہ شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری 2 ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ نوجوان مہران ممتاز، کامران غلام، حسیب اللہ، محمد علی، نعمان علی اور ساجد خان کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ کھلاڑیوں میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، حسیب اللہ، کامران غلام، مہران ممتاز، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ شامل ہیں۔ محمد رضوان، نعمان علی، سائم ایوب، ساجد خان، سلمان علی آغا اور زاہد محمود بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ گریٹر اقبال پارک میں اربوں کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پنجاب حکومت نے آڈٹ رپورٹ 2020 تا 21 پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ گریٹر اقبال پارک منصوبے میں 3 ارب تک مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ پنجاب حکومت کی صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 8 کروڑ 44 لاکھ کے اخراجات کا ریکارڈ آڈٹ رپورٹ کو فراہم نہیں کیا گیا۔ گریٹر اقبال پارک کی تعمیر میں 21 کروڑ 98 لاکھ سے زائد ممنوع اشیاء پر غیر قانونی استعمال کیے گئے۔ 17 کروڑ 58 لاکھ سے زائد کی ادائیگیاں نیشنل ہسٹری میوزیم کے ملازمین کی تنخواہوں کی تقسیم بغیر کاغذات کی تصدیق سے ہوئی۔ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گریٹر اقبال پارک افتتاح پر 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد خرچ کیے گئے۔ 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت کے تعمیراتی کام ٹھیکیداروں کو دیے گئے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم کی سروسز کے لیے 7 کروڑ 85 لاکھ سے زائد اضافی ادائیگی کی گئی۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ورلڈ بینک سے قرض لینے کا فیصلہ۔ ورلڈ بینک پنجاب حکومت کو $300 ملین سافٹ لون دے گا۔
पंजाब हुकूमत वर्ल्ड बैंक का कर्ज लोन 25 साल में वापस करने की पाबंद होगी। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसदादे स्मोक के लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सॉफ्ट लोन पर मामलात तय पा गए। 5 साल ग्रेस पीरियड होगा। पंजाब हुकूमत को स्मोक के तदारुक की मद में 2% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट्स भी फराहम करेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी भी फराहम करेगा। आलमी बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन और डिस्पोजल पर गाइडलाइन फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक का वफ्द सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात भी कर चुका है। शहर में गिरां फरोश माफिया का राज, सरकारी निर्खनामे में दर्ज कीमतों का इतलाक मुमकिन न हो सका। दुकानदार मनमानी कीमत पर महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे और जायद निर्खों में फरोख्त से शहरी परेशान हैं। आलू 77 की बजाय 120 रुपए किलो, प्याज 125 की बजाय 180 रुपए, टमाटर 70 की बजाय 100 रुपए, लहसुन 380 की बजाय 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक 930 की बजाय 1200 रुपए किलो, लीमू 95 की बजाय 200 रुपए, गाजर 80 की बजाय 140 रुपए, फलियां 145 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही हैं। फलों में केला 120 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 220 की बजाय 300 रुपए किलो, नाशपाती 400 की बजाय 500 रुपए, अमरूद 150 की बजाय 200 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर 285 की बजाय 450 रुपए, अनार 300 की बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जैन मंदिर रोड, फिरोजपुर रोड पर मौजूद जंगले गायब होना शुरू हो गए और जंगले ग्रीन बेल्ट से गायब हैं। और मजीद जानते हैं इस हवाले से इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर, जैन मंदिर के मुकाम पर। जैसा कि फिरोजपुर रोड के बिल्कुल बीचों बीच जो ग्रीन बेल्ट मौजूद है, वहाँ पर पौधों के लिए और उसके बाद दरख्तों के लिए एक हसार बांधा गया था। वहाँ पर खसूसी जो है वो जंगले लगाए गए थे ग्रीन बेल्ट की हिफाजत के लिए, ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए, उसकी तज़ीन और आराइश के लिए। लेकिन वहाँ पर ये जंगले जो है वो चोरी होते गए और यहाँ पर चोरी होने की तादाद जो है वो इन जंगलों की इतनी होगी कि वक्तन फ़वक्तन जो है ये जंगले चोरी होते हुए नज़र आए। और उसके बाद बिल आखिर ये जो जंगले हैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो है वो चोरी हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो पोल मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है वो यहाँ पर लोहे के जो पोल मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो उनको सपोर्ट करने के लिए जो गार्ड लगाए गए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जंगले जो है वो नहीं हो हैं, इसलिए अहले इलाका का इंतज़ामिया से यही अपील करते कहना है कि ये जंगले जो हैं वो ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश के लिए लगाए गए थे, अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए थे। लेकिन ये जंगले इंतज़ामी मामलात के ख़राब होने के सबब और इंतज़ामी बेतवज्जी के सबब जो है ये जंगले यहाँ से चोरी होना शुरू हो गए। और यहाँ पर नशे के आदी अफराद जो हैं, इन्होंने अपने नशे के पूरा करने के लिए जो है वो यहाँ से जंगले चोरी करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो नशे के आदी अफराद का बसेरा भी जो है नज़र आता है, जिसके सबब यहाँ पर राहगीर और अहले इलाका जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश के लिए काम करे, यहाँ पे जंगले लगवाए, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती जब यहाँ पर दुबाला होगी, बहाल होगी, तो इस तरह इलाके और जो सड़क की खूबसूरती है। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी मसाइल के अमाज का बन गया। नाकिस सीवरेज निज़ाम, टूटी गलियां मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। मजीद क्या सूरत हाल है, हमें तोकीर आगाह करेंगे। जी तोकीर। गढ़ी शाहू शहर की एक कदीम इलाकों में शुमार किया जाता है और वहाँ पर कायम रेलवे कॉलोनी जो कि अरसा दराज से कायम है, लेकिन उसकी खस्ता हाली की वजह से रहने वाले जो लोग हैं वो ज़हनी अजियत का शिकार होते जा रहे हैं। जिस कदर टूटी सड़कें, गलियों में लाइट ना होने की वजह से, सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से लोगों को ना सिर्फ ज़हनी अजियत है बल्कि वहाँ पर हादसात रोनुमा होना भी मामूल बन चुके हैं, क्योंकि रात के वक्त वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती और सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से जगह जगह पानी खड़ा होता है, जितने गड्ढे वहाँ पर पड़े हैं। और लोगों का, इलाका मकीनों का कहना है कि अक्सर लोग वहाँ से गुजरते हुए गिर भी जाते हैं, क्योंकि लाइट्स ना होने की वजह से लोगों को नज़र नहीं आता और वो गिर जाते हैं। और जो टूटी सड़कें हैं उसकी वजह से भी हादसात होना मामूल बन चुका है और इलाका मकीन इस चीज़ से। तो की रकम, बहुत शुक्रिया आपका।
नौलखा बाजार से मुتصल रेलवे रोड का पार्क इंतजामी गफलत का शिकार है। देखभाल ना होने से पार्क में लगे हिफाजती जंगले भी गायब हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, फातिमा खान वहां पर उनसे जानते हैं। जी फातिमा। नौलखा बाजार से मुتصल रेलवे रोड पर पार्क जो है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में मुनासिब देखभाल और सफाई सुथराई के इंतजाम ना होने की वजह से घास गायब हो गई है। वहीं फूल पौधे की बात करें तो वो मुरझा गए हैं। पार्क जो है वो तफरीह सरगर्मियों के काबिल नहीं रहा है। इर्द गिर्द के जंगले तक गायब कर दिए गए हैं। हिफाजती जंगले यहाँ पे ना होने की वजह से इलाका मुकीन का कहना है कि मंशियात के आदी अफराद और चोरों की जानिब से ये जंगले गायब कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पार्क की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। कभी भी आवारा जानवर जो है वो अंदर आ जाते हैं और रात के औकात में अक्सर जो है मंशियात के आदी अफराद इसको अपना मरकज़ बना लेते हैं। कचरे और गंदगी का ढेर भी होने की वजह से पार्क की वजह से कई बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं और पार्क की सबब बन गया है, जिससे इलाका मुकीन जो है काफ़ी जहमत का शिकार है। उनका ये कहना है कि कई बार इंतजामिया को शिकायत भी दर्ज करवाई है कि पार्क की सूरत हाल को बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने अपडेट किया। जौहर टाउन बी ब्लॉक का रुख करेंगे। वहां पर तफरीह के लिए बनाया गया पार्क अंधेरों में डूब चुका है। लाइट्स ना होने से तफरीह सरगर्मियां मुतासर हैं। शहरियों को किन दुश्वारियों का सामना है, सूरत हाल क्या है, हम उमैर अफजल से जानते हैं। जी उमैर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन बी ब्लॉक में, जहाँ पर आवाम की तफरीही मकासद के लिए बनाया जाने वाला पार्क जो है वो इस वक्त अंधेरों में डूब चुका है। जबकि पार्क के खिलाफ लगाए जाने वाले जंगले जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जबकि पार्क का जो मरकज़ी गेट है वो भी टूट फूट का शिकार है और नशे के आदी अफराद जो हैं वो गेट उतार कर यहाँ से ले गए, जिसकी वजह से पार्क जो है वो इस वक्त गैर महफूज है और किसी भी किस्म के जानवर जो हैं वो बिला ख़तर जो है वो इस पार्क में दाखिल हो सकते हैं। और दूसरी जानिब बात कर ली जाए पार्क के तलाफ सफाई की, तो सफाई के भी नाकस इंतजामात हैं। कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बदबू और ताफुन का राज है। अंधेरे की वजह से यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो अपने तफरीही सरगर्मियाँ रात के वक्त में जारी नहीं रख सकते, क्योंकि रात का अंधेरा होने की वजह से जो जी उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 99वां इजलास, सरवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। प्रोग्राम में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट एप्लीकेशन 76,000 से ज्यादा हैं। गवर्निंग बॉडी के इजलास में फाटा को मुआहदा साइन करने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक के अमल को बरवक्त और तेजी से जारी रखने की हिदायत की। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उज़्मा जाहिद बुखारी व दीगर शरीक थे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का N119 का दौरा बागबानपुरा, चाइना स्कीम, भगतपुरा, धर्मपुरा, शादीपुरा में आवाम के खुशी और गम में शरीक हुए। मतलूब जट ने लीगी रहनुमा के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने NA119 की मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत, एडवोकेट लियाकत आवान, मलिक वसीम, हाजी कैसर, राना वकास हमरा थे। यूसी 125 में लीगी रहनुमा साजदा वसीम की बहन और यूसी 128 में फजले इलाही के भतीजे की वफात पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने यूसी 161 में हाजी इरशाद के बहनोई और यूसी 24 में मस्कीन शाह के चचा की फौतगी पर इजहार ताज़ियत किया। महर गुडू, मोहम्मद अजमल, मास्टर निसार, हाजी फरियाद, मोहम्मद काशिफ, फरमान शाह, मोहम्मद सईद समेत दीगर हमरा थे। ये मेरा घर है। मैं तो अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि मेरे ऐसे बाजू चौईसा की शक्ल में, मतलूब की शक्ल में यहाँ पे मौजूद हैं। ये पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, अपने इलाके की खिदमत करते हैं, अपनी शहर की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। TP 152 शादीपुरा में मतलूब जट ने अली परवेज मलिक के एजाज में इस्तकबालिये का एहतमाम किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खुराक मलिक वहीद, नासिर जट, मलिक आजम, अफजाल शाह, मोहम्मद अली, चौधरी अली जट भी शरीक हुए। सादत अली, हाजी अकरम जट, मलिक टीपू, मलिक अनवर, मियाँ अकबर समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं ने अवामी मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42 लाहौर। एक मौसम सरमा की आमद आवाम ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी। महंगाई के मारों को लंडे बाजार का सहारा। शहर के लंडे बाजारों में रश लग गया। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदने लंडा बाजार पहुंच गई है।
महंगाई के मारे शहरियों को लंडा बाजार का सहारा। सर्दियों की आमद से कबल ही लंडा बाजार में रश लग गया। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर दिया। किसी ने गर्म स्वेटर खरीदा तो कोई जैकेट की तलाश करता नजर आया। नौजवान अपने लिए दीदा जेब, जॉगर्स और बूट लेने पहुंचे। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार में मियारी चीज मुनासिब दाम में मिल जाती है। दुकानों की निस्बत लंडा बाजार में अशिया की कीमतें कम हैं। पहले सर्दियों की शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं और बाद में जब बंदा ऐड में जाता है सर्दियों के दौरान तो वहाँ से अच्छा माल भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर चीज़ें सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं। अभी हम आए हैं, सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं, लेकिन उसकी शॉपिंग पहले इधर स्टॉक आ गया तो अभी चीज़ें लेने आए हैं। इधर सस्ती मिल रही हैं, अभी टाइम से ले रहे हो तो सस्ती मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं। मैं लेके आया हूँ, जैकेट लेके आया हूँ एक। शहरी बीवी, बच्चों और दोस्तों के हमरा लंडा बाजार में खरीदारी में मसरूफ रहे। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस यहाँ भी लोग भाव ताव करते हैं। हाई रेट्स हैं, ये नहीं है कि पिछले साल से इन्होंने कम किए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा किए हुए हैं। लेकिन मेन मकसद ये है कि यहाँ से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो शॉप की निस्बत यहाँ से फिर भी अच्छी मिल जाती है। हमने सर्दियों का स्टॉक लगाया हुआ, यहाँ कपड़े, जूते, जैकेट सब कुछ जा रहा है। सर्दियों से पहले लोग खरीद रहे हैं ताकि सस्ते में इनको मिले। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी है कि एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। अब सिर्फ लंडा बाजार से ही कपड़े खरीदे जा सकते हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर।